So let's start a new lecture, electric flux and Gauss law. So इस चैप्टर में हमारा स्कोप रहेगा, वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली गॉस लॉ. और गॉस लॉ को पढ़ने के लिए वी नीड टू स्टडी द फ्लक्स एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स what is flux and what is this electric flux, and from there we'll go to the Gauss law. And जब हम Gauss law देख लेंगे तो basically we'll see the application. Majorly we are going to see the application of Gauss law in finding the electric field in the symmetric bodies or extended bodies where the symmetry is there. ठीक है. So basically ultimately we have to apply the Gauss law in finding the electric field. और Gauss law को समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. एक और कॉन्सेप्ट हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, नॉट इन दिस लेक्चर, इन दिस चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल. ठीक है. सो ये चीज़ें देखेंगे, बट विल डू अ लॉट ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स जस्ट टू गेट द ग्रास्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट व्हेन यू कीप ऑन अप्लाइंग इट ऑन द प्रॉब्लम्स देन यू विल हैव अ बेटर विजुअलाइजेशन के किस तरीके से यू कैन अप्लाई दोस मैथमेटिकल इक्वेशंस दैट वी आर हैविंग इन गॉस लॉ और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है. सो लेट अस बिगिन विद द लेक्चर नंबर 1. लेक्चर नंबर 1 में आज का जो हमारा स्कोप है, विल ट्राई टू get into the idea of concept of flux and the what is this electric flux. ठीक है. Then we will build up our understanding on the area vector. Okay, what is this area vector? Because area we have till today studied, it's a scalar quantity, but today we are going to see for this flux purpose we have to see the area from the vectors perspective, and then we are going to see this topic, electric flux due to a point charge. If the point charge is there, so what is the electric flux, and whether it is varying with distance or whether it is independence of the distance, so that we are going to see. And then today we are just going to get a basic level understanding of Gauss law, what is Gauss law, but the application and further development of Gauss law, because Gauss law it's just one statement but इसकी application बहुत wide है. That will take another lecture or 1 or 2 lecture maybe, but आज हम we are just going to have the basic understanding of Gauss law कि होता क्या है Gauss law, इसकी mathematical framework क्या है Gauss law का. That is what we are going to see today. Okay, so let us begin our lecture number 1. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से. तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ दिस फ्लक्स. फ्लक्स इज़ बेसिकली माय फ्लो. ठीक है. किसी भी चीज़ का फ्लो इज़ कॉल्ड अ फ्लक्स. सो फॉर इंस्टेंस अगर आपका ये this is your pipe and from there the water is flowing out of it, so we can say it is a flow of water. So what is the rate of flow of water? You know the rate of flow of water, you take it area into velocity. Okay, so that is the flow of water coming out of this pipe, so that is a flux, that is a fluid flux we can say. Okay, same way in the electric, in the in our electric in our electrostatics, we are going to see electric field, and because of this electric field we have a flux of this electric field. So I think previous 2 chapters, previous in the last 2 chapters or before that, we have seen the concept of electric field lines. ठीक है. electric field line के concepts, it was a qualitative concept, electric field lines. ठीक है. we have not done any mathematical framework on that. we have just seen के कोई charge रखा हुआ है, so how is the electric lines coming out of it or going into it, and we just we just have the visualization of this. But electric flux is going to quantify that visualization. It is going to help you finding out okay, how many electric lines are passing through. So for instance, if you are having this positive charge lying at this center, so आपको पता है कि with the electric field lines, so these are the electric field lines. ठीक है. ये सारी मेरी electric field lines है मेरी. so you know कि इस surface के through you have the electric field lines going through like this. ठीक है. आपको एक qualitative analysis मिल गया with the electric field lines कि कैसे जा रही है. but if you need a quantitative analysis कि मेरे को इस surface के through what is the number of field lines passing through, और इस surface के through what is the number of field lines passing through, और total ये पूरा मेरे cube है, इसके through what is the number of field lines passing through. if I need to know all those things in a mathematical in the quantitative way, then I need to define one another. I need to work on the concept which is called electric flux. ठीक है. electric flux. So what is the definition of electric flux? It is a total number of electric field line passes normally through the area that we are considering. Suppose you need to know कि इस surface के through what is the number of field line passes through. So you have to find out the number of field line passing through the area which is perpendicular to the field lines. So that will give you the numeric value of the electric flux. Okay, so flux basically we'll go back and see
फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड. वी हैव इन आवर फिजिक्स वी विल बी स्टडिंग थ्री सेट ऑफ basically four set of vector fields. One is electric, one is magnetic, that we are going to cover up in this part of our series. Okay, electric vector field we are going to study now. Magnetic vector field we are going to study later. Gravitational vector field we are going to study when we are going to start our mechanics too, and fluid also we are going to see. So these four vector fields are there. So for those we can define the flux. ठीक है, for the vector field we can vector field का मतलब है कि आप किसी point पे you will draw it with the arrow and it will give you the magnitude and the direction of that point. ठीक है, so all this arrows are giving you the vector field. So it is giving you the magnitude as well as the direction of the field at that point. So अगर यहाँ पे कोई point रखा, so it will move in this direction. अगर Q मेरा charge यहाँ पे रखा मैंने Q naught test charge, so it will move in this direction. So that is what it is showing, कि magnitude and direction, how it is spread it out in the space, how it is spread it out in the phase. So that is what it is. So that is what it is my flux. Okay, so now the definition of flux is total number of electric field line passes normally through that area. ठीक है, so इस अगर मेरे को इस एरिया के थ्रू फ्लक्स निकालना है, इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, आई हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलरली इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास ऑन कर रही है. दैट इज़ विल गिव मी माई द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, बिफोर गोइंग इनटू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन में, उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इज़ बेसिकली द सरफेस एरिया वेयर वील बी हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होती है उसकी? इट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन. जो भी जिसका भी, जैसे मेरा सरफेस है, सपोज आई एम हैविंग द टू सेट ऑफ एरिया इन आर whenever we are studying the electric flux. One is the open area, suppose this is just openly एक शीट रखी हुई है, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, दिस इज़ माई सरफेस एरिया ऑफ दिस विल गिव मी द, इसके होंगे मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका, सपोज दिस इज़ माई मैग्नीट्यूड आ गया. अब डायरेक्शन क्या हो सकती है? ओपन एरिया में डायरेक्शन कैन बी दिस डायरेक्शन, क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर है नॉर्मल टू द प्लेन. ठीक है, सो इट कैन बी दिस डायरेक्शन और इट कैन बी दिस डायरेक्शन. बोथ द डायरेक्शन मेरी कैन बी इन द ओपन एरिया. ओपन एरिया में यू कैन हैव एनी ऑफ द डायरेक्शन इन दिस. ठीक है, बट वेन एवर यू आर कंसिडरिंग अ क्लोज एरिया ऑलवेज हैव अ वन नॉर्मल विच इज़ कमिंग आउट. ठीक है, यहाँ पे जितना भी दीज आर ऑल द स्मॉल एरियाज. अगर कोई भी आप एरिया लोगे, उससे जो कमिंग आउट वाला नॉर्मल होगा, दैट विल बी माई डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर. ठीक है, बट यहाँ पे अगर ओपन एरिया है तो यू कैन कंसिडर दिस ऑल्सो एज ए नॉर्मल वेक्टर और दिस ऑल्सो एज ए डायरेक्शन और दिस ऑल्सो एज ए डायरेक्शन. ठीक है, सो इसमें दो डायरेक्शन होती है मेरी ओपन में, एंड क्लोज में यू जस्ट हैव ओनली वन आउटवर्ड नॉर्मल. ठीक है, और एरिया वेक्टर इज़ नथिंग बट इसका मैग्नीट्यूड हो गया इसका एरिया का, और इसका जो डायरेक्शन हो गई दैट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. जिसके जो जिस एरिया में प्लेनर वेक्टर, सो इसके परपेंडिकुलर इज़ माई, इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई डायरेक्शन. ठीक है, और डायरेक्शन हमारी ओपन में दो हैं और क्लोज में मेरी एक ही डायरेक्शन है, दैट इज़ आउटवर्ड नॉर्मल. राइट, नाउ विल सी व्हाट इज़ माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स passing through the area. That is what my electric flux is. We have seen in the fluid also, okay, if any fluid is passing through this, if any fluid is passing through, so what is my rate of this fluid? It is my area into velocity. So this with this area, how much is my fluid rate of fluid going through is area into velocity. So here the velocity, here in our electric field वेक्टर फील्ड में क्या होता है ना, हमारा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ एनालॉगस टू दिस वेलोसिटी. ठीक है, दैट इज़ एनालॉगस टू दिस वेलोसिटी. सो इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स विच इज़ गोइंग थ्रू दिस एरिया, सो आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स विच इज़ गोइंग थ्रू दिस एरिया. सो माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ like this in this direction. So I have to see the area which is perpendicular to the field. ठीक है, E into area perpendicular to the field, that will give me the number of field line passes through it. ठीक है, that will give me the strength of my flux or the number of field line passing through it. So my flux comes out to be E into area perpendicular. So this area, ये जो मेरा area है, that इसका जो है that should be perpendicular to the that should be perpendicular to my electric field. That will give me the flux. ठीक है, now इसमें देखते हैं हम. Now we are going to see, we are further extending our discussion. Now we are going to see कि अगर मेरा, if I am having the area like this, if it's not perpendicular,
ठीक है. If it's not perpendicular, if my area is like this, if my area vector is making some angle, so this is my area vector. ठीक है. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, इट इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ मेकिंग सम एंगल थीटा. ओके. सो in this case we have to see कि what is my flux. तो हमने देखा था यहाँ पे flux is nothing but my magnitude of E into area perpendicular. यहाँ पे जो है मेरा this is my lines of force. ठीक है. इसका जो होगा सो परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस एरिया विल बी द, अगर मैं इस एरिया, ये वाला जो एरिया है मेरा, इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ. ठीक है. इसका मैं प्रोजेक्शन लूँ. इफ़ आई पुट अ टॉर्च लाइट फ्रॉम हेयर and if I see the projection of this will come this area only. So this is my area perpendicular. ठीक है. area perpendicular, this will be my area perpendicular for this electric field. So ये कितना है, ये मेरा थीटा है. इसका सपोज मेरा एरिया है, इसका मैग्नीट्यूड मेरा a है. सो एरिया परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, a cos थीटा. ठीक है. नाउ माई फ्लक्स विल बी E इंटू a cos थीटा. ठीक है. सो दैट विल बी माई फ्लक्स हेयर इफ आई एम हैविंग द area which is not perpendicular to the which is not perpendicular to the electric field lines. ठीक है. So in that case this will be my this is my flux. Okay. Now whatever the cases we are assuming right now, our assumption is that uniform electric field. If the electric field is uniform, then only we'll apply this thing. But if the electric field is varying across the surface, so for instance if we take this surface, and if we are having the electric field, it is not like this. If we are having the electric field like this, ठीक है. So electric field is varying at each and every point on the surface. So in that case you cannot directly apply this. What we have to do, we have to take a small area. In that small area we have to see what is my E for that small area, and then in that small area I have to find out my flux. Flux is my E dot area perpendicular, or we can say E dot a cos theta. ठीक है. This will be my flux. तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, I have to take the value of E here for the small area A. ठीक है. For the small area A we have to take the value. So what we have to do, our EF is varying over the surface, so what we will do, we'll divide the whole surface into small units. So we'll take small area. ठीक है. Small area ले लिया. Now my flux will be the summation of this all electric field into small area. ठीक है. ये सारे एरिया से जितना भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहा होगा, that will be the summation of this. If I limit my area as if I limit my area delta A tends to 0, so this summation will convert into integration. So finally this will be my if I am having a varying electric field, so to find out the flux, so this will be my formula. Flux will be surface, ये जो overall surface है इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को, because this is my dA, E dot dA. ठीक है. So this will be my flux for this whole surface. Okay. So once again, if my electric field is varying, so if I have to find out the flux through this surface, इस surface के through मेरे को flux निकालना है, and my electric field is varying, so I cannot apply E into A perpendicular directly. So what we have to do in that case, to find out the flux over whole, so what we have to do, we'll take a small area ले लिया, that we take dA, small area. So what we have done, okay, what is the electric field in this area, E dot dA, इनका we do the surface integration, and that is going to give me d phi. Okay, that is going to give me d phi. So this is whenever we are having the varying electric field. Next देखते हैं. So suppose you are having a this is your area, this spherical ball is your area, and the electric field is like this in this line. Electric field is like in this line, it is going in and coming out. ठीक है. It is going in and coming out, it is like in this direction electric field. So we'll consider, हम लोग देखते हैं ये 3 एरिया देखते हैं, इन तीनों में what is my flux through these 3 areas. ठीक है. We are not been asked to see the flux overall, we'll see the area
we'll see the flux through these three areas only. So पहले हम देखते हैं, this is my area 1, so we'll see the flux through this area. So electric field lines जो यहाँ से आ रही होगी, so it will coming in and from here it will be going out. ठीक है, so यहाँ पे suppose मेरा so here this is my electric field line. ठीक है, this is my E and this is my area perpendicular, delta A into N. ठीक है, this is my area perpendicular. Now here the angle between them is lesser than 90 degree, or so we can say the cos theta will be my positive if it's lesser than 90 degree. So the flux comes out to be positive. So here the flux will be E into delta A, ये वाला जो एरिया मेरा, into cos theta 1, इन दोनों के बीच में cos theta 1, and the angle is lesser than 90 degree, we can say it is positive. So whenever my flux is coming out, whenever my electric field is coming out of this closed surface, we'll say the angle will be lesser than 90 degree and the flux will be positive whenever the flux is coming out of the surface. Whenever the flux is going into the surface, my angle will be greater than 90 degree and it is up from 90 degree to 180 degree के बीच में होगा. In that case we can say it will be having a flux negative. So we'll see this case. ये वाला केस देखते हैं. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, दिस इज माई डायरेक्शन एंड दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ माई एरिया वेक्टर. ठीक है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो इन दिस केस इट इज़ अपोजिट, सो माई थीटा इज माई 180 degree. In this case theta comes out to be 180 degree. Then in this case phi comes out to be negative E into this small area. ठीक है, नेगेटिव टी ए आ गया इस केस में. ओके, नेगेटिव टी ए का मतलब द my electric field lines are entering into it whenever I am having the positive flux. That means कि from there my electric field lines are coming out of it. That is a case of closed surface area. ठीक है, closed surface area में we have only one direction of area vector which is outward only, which is my direction of area vector. Now this third area को देखते हैं, इससे just graze through होके लाइन जा रही है. So in that case जो मेरा area vector है इसका and जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में एंगल इज़ 90 डिग्री. सो इट इज़ जस्ट ग्रेजिंग थ्रू माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर जस्ट ग्रेजिंग थ्रू दिस सरफेस. सो इन दिस केस माई फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. In this case, so this is my second case where it is grazing through and the angle between the area vector and the electric field line is 90 degree, and in this case my flux comes out to be 0. So whenever there is a close field, अगर मेरी field lines enter कर रही हैं, ठीक है, and this field line is there, okay, so this field line if it's entering it from here, so यहाँ पे area vector ये होगा और field line की direction ये है, so my flux comes out to be equal to negative. ठीक है, in this case this is my area vector n and this is the direction of my field line. So here in this case my flux comes out to be greater than 0. ठीक है, so outward में whenever there is a closed surface, outward में my flux is positive और जब मेरा inward कर रहा होगा that flux will be negative. ठीक है, that flux will be negative. Okay, and if it's just grazing through का मतलब है कि if my area suppose this is my अगर ऐसे दे रखा है एंड माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला जो मेरा सरफेस है इससे जस्ट ग्रेज थ्रू कर रही है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले सरफेस से, और ये जो मेरा बैक में एक सरफेस होगा, ये जो बैक में सरफेस होगा इससे बस ग्रेज थ्रू करेगी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो इन दैट केस वी कैन से कि द एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल इज़ 90 डिग्री एंड इज़ जस्ट ग्रेजिंग थ्रू, सो द फ्लक्स विल नॉट बी देयर. ठीक है, ओके. फ्लक्स का मतलब है जितना मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जितना बड़ा एरिया मिलेगा उतना बड़ा फ्लक्स मिलेगा. ठीक है, और जितना छोटा एरिया मिलेगा उतना फ्लक्स कम मिलेगा. सपोज इफ़ दिस इज़ माई कंप्लीट स्क्वायर विच इज़ इन दिस वे, और यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ऑन कर रही है. विल टेक क्यूब लेते हैं. क्या बना रहा हूँ मैं? ठीक है, क्यूब ले लिया. यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं. ठीक है, इफ़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो जितना मेरा बड़ा एरिया होगा, जितना मेरे एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही होगी, ठीक है, उतना ही मेरा फ्लक्स होगा. सो इस वाले सरफेस के अगर मैं देखूँगा तो इट इज़ कम्प्लीटली इन द perpendicular to the electric field. So in that case my flux will be highest. Flux will is what E into area perpendicular. अगर area perpendicular की वैल्यू मेरी बिल्कुल ये दोनों आमने सामने, मतलब
एरिया परपेंडिकुलर मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर एरिया है, तो दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस विच इज़ गोइंग थ्रू विल पास थ्रू इट। अगर उसमें कुछ स्लांटिंग आ गई कुछ एरिया में, अगर कुछ एंगल पे हो गई एरिया, तो दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रिक लाइंस विल नॉट पास थ्रू, सो वहाँ पे फ्लक्स मेरा कम हो जाएगा। अगर इफ़ आई टिल्ट दिस क्यूब टू सम एंगल, सो फॉर इंस्टेंस इफ़ आई एम हैविंग, यहाँ से मेरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं, ठीक है, दिस माई इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो यहाँ से द एरिया परपेंडिकुलर इज़ देयर, दिस इज़ माई एरिया परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, यहाँ से सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज गोइंग थ्रू दिस एरिया परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको टिल्ट कर दूँ, इफ़ आई टिल्ट इट लाइक इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इफ़ आई टिल्ट इट इन दिस डायरेक्शन, अब मैं इफ़ आई टिल्ट इट इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स जो प्रोजेक्शन ऑफ एरिया होगी, जो परपेंडिकुलर एरिया होगा, वो इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, so that the lesser number of electric lines will pass through it, lesser number of electric lines will pass through it, so flux will be reduced। तो एरिया से अगर मेरा एरिया बढ़ रहा है, अगर मेरा एरिया पर में, सो फाई इज़ माई इंटू ए कॉस थीटा है ना, ठीक है। सो जितना मेरा जैसे जैसे मेरा थीटा बढ़ता जाएगा, इन दैट केस माई एरिया विल बी माई फ्लक्स विल बी रिड्यूसिंग, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा, थीटा जो एंगल है दैट इज़ अ एंगल बिटवीन दिस प्लान, जो ये परपेंडिकुलर नॉर्मल आउट आ रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगर ये दोनों पैरेलल हैं दोनों, सो थीटा इज़ माई ज़ीरो, इन दैट केस आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट। अगर फ्लक्स और माई surface is perpendicular, electric field lines and fluxes, electric field lines and area is perpendicular, in that case my flux will be maximum, ठीक है। अब विल सी सम क्वेश्चंस, थोड़ा विजुअलाइजेशन है इस कंसेप्ट में, विल सी सम मोर क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन से और थोड़ा क्लियर होगा, बट माय फ्लक्स कॉन्सेप्ट इज़ दिस वन, के फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू एरिया परपेंडिकुलर, ठीक है। सो दैट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हेयर इन फ्लक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इन दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दे रहा है कि वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हेयर, मेरे को बताना है कि ये इस स्क्वायर से व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है मेरे को, एट ए कॉर्नर ऑफ स्फेयर रखा हुआ है, एट ए कॉर्नर ऑफ स्क्वायर रखा हुआ है, आई नीड टू टेल द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इफ़ यू सी कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी इट विल बी ग्रेजिंग थ्रू दिस स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी ग्रेजिंग थ्रू दिस स्क्वायर की स्क्वायर से ग्रेज थ्रू करती हुई जाएंगी। सो इसका जो एंगल जो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस का और मेरा जो एरिया वेक्टर होगा इसका स्फेयर का, इसका स्क्वायर का, दैट विल बी एंगल बिटवीन देम विल बी द 90 डिग्री, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी ग्रेजिंग थ्रू देम, सो इन दिस केस द फ्लक्स थ्रू द स्फेयर इज़ ज़ीरो, बट इन दिस केस अगर यहाँ पे ये स्फेयर, यहाँ पे ये क्यूब होता, तब इन दैट केस इट विल नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। तब उस केस में सम फ्लक्स वुड बी कमिंग इन दैट केस इट वुड नॉट बी ज़ीरो, ओके। बट इट्स ए स्क्वायर, सो इन द स्क्वायर इट विल बी इन द प्लेन, सो जो मेरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगे इट विल बी जस्ट ग्रेजिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर, ओके। इसमें कह रहा है कि एक हेमिस्फेयर दे रखा है मेरे को, और दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आई हैव टू टेल कि कितना मेरा व्हाट इज़ माई फ्लक्स गोइंग आउट, एंड फ्लक्स गोइंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस एंड फ्लक्स गोइंग इन टू दिस सरफेस, ये बताना है मेरे को, ठीक है। सो फ्लक्स गोइंग इन तो सिंपल, ये मेरा एरिया कितना है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया, ये एरिया कितना है मेरा, दिस इज़ नथिंग बट माई दिस इज़ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर हो गया सिंपल, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके थ्रू जो होंगे मेरी, इफ़ यू सी ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया का जो भी प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी दिस ओनली, ये स्क्वायर, सपोज इफ़ आई टेक दिस डी एस लेता हूँ मैं, ये डी एस इसका जो प्रोजेक्शन होगा वर्टिकल, सो इसका जो वर्टिकल, बिकॉज दिस डी एस के ही वर्टिकल, ये डी एस है, सो इस डी एस के ही तो मेरा एरिया वर्टिकल, जो मेरे को इसका वर्टिकल एरिया लेना ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के वर्टिकल एरिया, सो इस डी एस का जो मेरा ये वाला डी एस, ये दिस डी एस का जो प्रोजेक्शन आएगा वर्टिकल, ये वाला, ठीक है। सो दैट वर्टिकल प्रोजेक्शन इज़ नथिंग बट दिस एरिया ओनली, सारे डी एस का, अगर मैं स्मॉल डी एस का ले लूँ, स्मॉल डी एस का, इन सब का जो प्रोजेक्शन आएगा दैट विल बी दिस प्रोजेक्शन ओनली। सो ये वाला कर्व का भी जो मेरा प्रोजेक्शन आएगा दैट विल बी दिस ओनली, ठीक है। सो इफ़ यू अनदर वे टू सी इट, कि आप यहाँ से यू जस्ट सी द, जस्ट लाइट द टॉर्च फ्रॉम हेयर, ठीक है, इसको देखोगे, सो इफ़ यू सी दिस एरिया, ये वाला एरिया देखोगे, सो इट विल मेक अ शैडो ऑफ
अ सर्कल ओनली, इट विल मेक अ शेडो ऑफ अ सर्कल ओनली. सो दिस ये वाला जो एरिया होगा, सो दैट विल गिव मी द दैट इसके जो इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा, सो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा दैट विल बी नथिंग बट दिस सर्कल ओनली. इट विल बी नथिंग बट दिस सर्कल, ये वाले का. ठीक है, सो दैट विल बी नथिंग बट दिस सर्कल ओनली. सो यहाँ से जितनी गई जाएंगी दैट इज़ पाई आर स्क्वायर, एंड द कमिंग आउट इज़ ऑल्सो, इससे जितनी आएंगी दैट इज़ ऑल्सो पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ ऑल्सो पाई आर स्क्वायर. सो ई इंटू पाई आर स्क्वायर विच इज़ गोइंग इन एंड कमिंग आउट बोथ. ओके, सो इस केस में देखते हैं. इस केस में इफ़ दिस इज़ माई ओरिएंटेशन ऑफ माई हेमिस्फेयर एंड हेयर द लाइन्स आर गोइंग इन एंड हेयर द लाइन्स आर कमिंग आउट. ठीक है, इन दिस केस में क्या देखते हैं, इसके अंदर जो ये वाला जो एरिया होगा मेरा, यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग यार. ये वाला जो एरिया होगा, इसका जो सरफेस एरिया होगा दैट इज़ लाइक, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, सिंपल ये हाफ सर्कल होगा ना इसका, ये जो ऐसे सर्कल बन रहा होगा ये वाला. ठीक है, इसका बस ये हाफ सर्कल होगा, ऐसे बन रहा होगा. अगर ये स्फेयर है मेरा, सो इसका जो ये मेरा हाफ सर्कल बन रहा होगा ना ऊपर साइड का, जैसे यहाँ तो मेरा फुल सर्कल बना है, यहाँ पे मेरा एक हाफ सर्कल बन रहा होगा ऐसे, इसके अंदर ये ऐसे हाफ सर्कल बन रहा होगा. सो दैट इज़ व्हाट इसका प्रोजेक्शन होगा, और यहीं से ही इसका भी प्रोजेक्शन ये होगा. तो जितनी एंटर कर रही होगी उतनी ही एग्जिट कर रही होगी. एंड माय एरिया जो यहाँ पे होगा, जो परपेंडिकुलर टू माय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इट इज़ नथिंग बट दिस हाफ एरिया सर्कल. हाफ एरिया सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, इसके अंदर इसका जो प्रोजेक्शन था मेरा, जिसके थ्रू पास आउट कर रही थी, इसके अंदर इसका जो प्रोजेक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ दिस सर्कल ओनली. ठीक है, इट इज़ दिस सर्कल ओनली. या आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आप ये डी एस कंसिडर कर लें, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो प्रोजेक्शन, इस डी एस का प्रोजेक्शन ये इस डायरेक्शन में यही होगा ना, और इस सारे डी एस को ऐड कर दूंगा तो सारे का प्रोजेक्शन क्या आएगा, दिस वन ओनली, दिस वन ओनली, और ये पूरा सर्कल प्रोजेक्ट करेगा. ओके, सो और इस वाले केस में दिस विल बी द हाफ सर्कल. सो दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ माई, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ माई फ्लक्स. इस केस में देखते हैं. इस केस में मेरे को दे रखा है कि दिस इज़ माई एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और इट इज़ ऐसे एक तरीके का इंक्लाइन दे रखा है. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द, और जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रखी है, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, इट इज़ इन, अगर ये एक्स वाई जेड प्लेन है, सो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है मेरी. ठीक है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है. तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हैं, तो ये वाला जो मेरा सरफेस है, ये वाला सरफेस है, और जो बॉटम वाला सरफेस है, इन तीनों सरफेस से तो ग्रेस थ्रू होकर चली जाएंगी लाइंस. ठीक है, इसके तो कोई एरिया परपेंडिकुलर नहीं होगा इन तीनों के, इनके तो तीनों से ग्रेस थ्रू होकर चले जाएंगी. सो ये वाला पार्ट, ठीक है, इससे ग्रेस थ्रू हो जाएंगी मेरी लाइन, ये वाली लाइन, इस वाले से ग्रेस थ्रू हो जाएंगे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो बॉटम वाला मेरा पोर्शन है इससे ग्रेस थ्रू हो जाएंगे मेरी लाइंस, क्योंकि इन तीनों में जो एरिया वेक्टर है और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों के बीच में एंगल केस में 90 डिग्री. ठीक है, बिकॉज हेयर इज एरिया वेक्टर नीचे होगा, ये दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री. यहाँ पे दिस इज़ माई एरिया वेक्टर, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. यहाँ पे भी दिस विल बी माई एरिया वेक्टर, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. सो दिस विल ऑल्सो गिव मी 90 डिग्री. नाउ ये वाला हो गया मेरा दिस वाला पोर्शन. ठीक है, और मेरे को यहाँ पे दे रखा है दिस इज़ माई ए एंड दिस इज़ माई बी. ठीक है, सो ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन के थ्रू कितना होगा, ये एरिया यहाँ से तो परपेंडिकुलर है ये बिल्कुल इसके. ठीक है, तो एंगल जो मेरा आ गया दिस थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0 डिग्री. थीटा तो मेरा यहाँ पे 0 डिग्री आ गया. सो यहाँ पे ई इंटू जस्ट आई हैव टू डू द एरिया मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू एरिया. सो ई इज़ गिवन, एरिया कितना हो जाएगा इसका, सो दिस इज़ बी गिवन, सो दिस विल बी बी, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका, this one will be, ये मेरे को a दे रखा है, सो इसका एंड दिस थीटा इज़ गिवन, सो दिस विल बी a साइन थीटा. सो ये वाला हो गया a साइन थीटा. सो माई एरिया विल बी ए बी साइन थीटा इज़ माई फाई, फाई इज़ माई ए बी साइन थीटा इंटू ई. सो दिस विल बी माई फाई. ठीक है, इसके थ्रू जो एंटर कर रही होगी, अब जो एग्जिट कर रही होगी वो इसके थ्रू कर रही होगी, इस वाले सरफेस के थ्रू एग्जिट कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले के थ्रू. अब इसका क्या करेंगे, इसका भी हम प्रोजेक्शन लेके इसका परपेंडिकुलर एरिया निकालते हैं. ठीक है, इसका एरिया कितना है, ए इंटू बी, इसका एरिया इंटू बी. अब इसका क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकालते हैं. वो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. सो इसका परपेंडिकुलर, इसका जो प्रोजेक्शन होगा इट इज़ नथिंग बट दिस ओनली. सो इसका कितना होगा, ए बी इंटू ये थीटा है, तो ये कितना, ये 90 माइनस थीटा है, सो ए बी कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा ए बी साइन थीटा. सो ये जो इसका जो प्रोजेक्शन होगा इट विल बी नथिंग बट दिस वन ओनली.
ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या है, ए बी साइन थीटा, इसकी भी वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है। सो माई फ्लक्स विल बी ई इंटू ए बी साइन थीटा। सो जितनी एंटर कर रही है उतनी ही एग्जिट कर रही है, ठीक है। जितनी एंटर फ्लक्स कर रही है उतनी एग्जिट कर रही है। ये बिकॉज एंटर कर रही है दैट मीन्स कि ये वाला जो है ये मेरा एरिया वेक्टर ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, तो यहाँ पे जो आएगा मेरा माइनस आएगा। सो नेट जो आएगी मेरी ज़ीरो आएगी, बिकॉज यहाँ पे मेरा एरिया वेक्टर दिस डायरेक्शन में है। सो दिस माई एरिया वेक्टर इन दिस डायरेक्शन एंड दिस माई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। सो फ्लक्स की जो मेरी वैल्यू आएगी इट इज़ माइनस ई ए बी साइन थीटा। और इधर की साइड वाले में जो इस वाले सरफेस के थ्रू आएगी एरिया वेक्टर ये है, दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, this will be my area vector. So we have, it is having the angle 90 minus theta. So finally it is going to give me the value into AB sin theta पॉजिटिव वैल्यू। सो टोटल देखेंगे हम, नेट फ्लक्स देखेंगे, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, बोथ विल गेट कैंसिल एंड नेट फ्लक्स विल बी जीरो। सेम वे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसके थ्रू एग्जिट कर रही है, एग्जिट में हमने देखा था एग्जिट में द एंगल इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे एरिया दोनों का सेम है, प्रोजेक्टेड एरिया जो भी आएगा परपेंडिकुलर टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी यही आएगा एरिया, और इसका भी जो एरिया आएगा दैट इज़ व्हाट इट इज़ इक्वल टू दिस एरिया ओनली। सो यहाँ पे भी जो एग्जिट कर रही होगी उसका भी फ्लक्स सेम होगा, जो एंटर कर रही होगी उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, और जो एग्जिट कर रही होगी उसका फ्लक्स मेरा पॉजिटिव होगा। बट नेट मेरा दोनों का मिला के ज़ीरो आ जाएगा, सेम वे जो यहाँ से एंटर कर रहा होगा सेम यहाँ से एग्जिट कर रहा होगा, बिकॉज इसका भी जो एरिया जो प्रोजेक्शन आएगा यही आएगा, और जहाँ से एग्जिट कर रहा है उसका भी एरिया यही आएगा। सो इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी ज़ीरो, माई नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी ज़ीरो। ओके, नाउ विल सी दिस। अब इसका देखते हैं कि दिस इज माई इलेक्ट्रिक लाइन्स, आई हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर मेरा पड़ा हुआ है, सपोज अगर मैं 3D में देखें, सिलेंडर इज लाइंग इन दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ग्रोइंग लाइक दिस, ठीक है। सो जो मेरा लेटरल सरफेस है ये वाला, जो मेरा दिस सरफेस, ये जो मेरा लेटरल सरफेस आएगा, इस पे जितना भी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ये वाला, और पूरा जो भी मेरा लेटरल सरफेस होगा इस पे जितनी भी मेरी फील्ड लाइंस का जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो, बिकॉज इसके तो पूरा ग्रेस थ्रू कर रहा होगा ये, इन दोनों के बीच में तो एंगल तो 90 डिग्री होगा। सपोज ये वाला देखूँ मैं, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है, बट एंगल मेरा जो एंगल आ रहा है दिस सरफेस इट इज़ दिस, सो दिस इज़ 90 डिग्री। यहाँ पे देखूंगा मैं, ये ऊपर एंगल ये आ रहा है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर दिस एंड एरिया वेक्टर इज दिस, सो दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। सो सेम वे इन ये लेटरल सरफेस पे कहीं पे भी अगर मैं देखूंगा, माई एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो मेरा एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। सो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट विल बी ज़ीरो, फ्लक्स विल बी दिस ओनली, इसके थ्रू होगा एंड इसके थ्रू होगा फ्लक्स, ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो और एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में, सो यहाँ से एंटर कर रहा है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव, और यहाँ पे मेरा फ्लक्स होगा दैट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि एरिया वेक्टर भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और दोनों का एरिया कितना होगा, तो इसका भी एरिया ये होगा पाई r² और इसका भी एरिया ये होगा। सो नेट इसका एरिया होगा ए सपोज, सो यहाँ से लेफ्ट साइड से नेगेटिव होगा, ठीक है, बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज़ पाई, कि एरिया वेक्टर ये है एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ये है, सो एरिया इज एंगल बिटवीन देम इज़ पाई, और यहाँ पे दोनों का एंगल इज़ ज़ीरो, सो वी कैन से इट इज़ पॉजिटिव, इट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, और बट इफ़ वी सी सरफेस वाइज, इस सरफेस से मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है दैट इज़ माइनस ई ए, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है प्लस ई ए, एंड द ओवरऑल फ्लक्स इज ज़ीरो, और इस लेटरल सरफेस से तो ऑलरेडी ज़ीरो है बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है थोड़ा विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए इस क्वेश्चन को देखने के लिए। सो इसमें क्या है, मेरे को एक क्यूब दे रखा है जिसका ओरिजिन एट दिस क्यूब इज़ गिवन, ठीक है, दिस क्यूब इज़ गिवन टू यू। नाउ इसमें जो दे रखा है ना, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है पैरेलल टू XY प्लेन, सो दिस इज माई XY प्लेन, ठीक है। इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ कमिंग इन लाइक दिस, पैरेलल है, ठीक है, इट इज़ नॉट कटिंग, इट इज़ पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। सो इट विल बी इन, सपोज इट विल बी इन दिस प्लेन, ठीक है, ऐसे आ रहा होगा ये, इट विल बी इन दिस प्लेन, और जो एंगल दे रखा है दैट एंगल इज़ 37 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, ये जैसे आ रहा होगा
plane. So x-axis से it will be making an angle of 37 degree. It is making an angle of 37 degree with x-axis. ठीक है. Now we have to find out the electric flux across the electric flux through this cube. We have to find out. So अगर मेरा एक्स वाई प्लेन के थ्रू है, सो ये वाला जो मेरा सरफेस है एंड ये वाला जो सरफेस है, इससे तो ग्रेस थ्रू हो जाएगा बिकॉज इसके एक्स वाई के पैरेलल है मेरा जब इलेक्ट्रिक फील्ड, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ पैरेलल टू दिस एक्स वाई प्लेन. दैट मीन्स कि इसका एरिया वेक्टर ये होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग. सो ये नॉर्मल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. देन द फ्लक्स इससे ग्रेस थ्रू करेगा एरिया मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इससे भी ग्रेस थ्रू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा. सो विल से कि इसके और इस सरफेस में दे विल नॉट बी एनी S2 और S4 में. दिस माई S4. सो दे इट इज़ ग्रेजिंग थ्रू. दे विल नॉट बी एनी फ्लक्स पासिंग थ्रू इट. ठीक है. और अब ये वाला जो मेरा सरफेस है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, इन दोनों में एंट्री लेगा और इससे दिस सरफेस और दिस सरफेस से एग्जिट मारेगा. 2 और 5 से S3 और S5 से एग्जिट मारेगा एंड S1 और S4 से एंट्री लेगा. S1 और S1 एंड S4 से. सो दिस विल बी 4 नॉट 2. ठीक है. दिस विल बी S4. सो S1 और S4 से ये वाला यहाँ से एंटर लेगा और यहाँ से एग्जिट मारेगा. ये लाइंस. ठीक है. यहाँ से एग्जिट मारेंगे. सो थोड़ा एंगल है. सो यू हैव टू सी दिस एंगल. इट्स ए ज्योमेट्री. सो यू हैव टू विजुअलाइज इट एंड टू अंडरस्टैंड द एंगल्स के एंगल कैसे हैं. सो जब ये यहाँ से जो एंगल बनेगा, सो दिस इज़ माई 90 डिग्री. दिस इज़ माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स और ये मेरा नॉर्मल है. इन दोनों के बीच में एंगल विल कम आउट टू बी 53 डिग्री. ठीक है. सेम यहाँ पे सेम ये वाला जो सरफेस है, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस इज टोटली अपोजिट ऑफ इट. तो यहाँ पे भी द एंगल विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 53 डिग्री. ठीक है. और ये नीचे और ऊपर के में देखेंगे, दिस एंगल, दिस इज़ बॉटम में ये यहाँ से दिस एंगल इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 37 डिग्री. और सेम यहाँ पे भी होगा, not in above this back one, sorry not in down one, this one. और इसके साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 37 डिग्री मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में. सेम वे जो बैक वाला होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में द एंगल विल इज़ 37 डिग्री. ठीक है. सो द एंगल यू हैव टू सी के दिस एंगल इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट टू विजुअलाइज. सो दिस इज़, ये मेरा एंगल दे रखा है, दिस इज़ माई 37 डिग्री. ठीक है. दिस इज़ माई 37 डिग्री और मेरे को ये x है. ठीक है. ये इसके परपेंडिकुलर ये मेरा y आ गया. ठीक है. यहाँ पे जो मेरे को x और y के बीच में ये दे रखा है एंगल 37 डिग्री, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. दिस माई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज़ माई नॉर्मल n डायरेक्शन. ठीक है. n और इसके बीच में कितना हो जाएगा जब ये एंगल 37 है, दिस इज़ 90, दिस विल बी 53 डिग्री बिकॉज ये दोनों लाइन सेम है. टोटल 180 डिग्री होगा ना ये वाला. सो यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग. सो दिस इज़ ये ऐसे है, ये एंगल 37 डिग्री है. 37 डिग्री ये x है, ये y है. ठीक है. ये मेरा नॉर्मल आ गया इसकी डायरेक्शन में, नॉर्मल फॉर दिस वाले ये वाले सरफेस का. ठीक है. ये वाला ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 37 है, ये मेरा 90 है. सो दिस विल बी 53 डिग्री. ठीक है. दिस विल बी 53. सेम वे यू हैव टू सी द एंगल इन ऑल 4 सरफेसेस. ठीक है. सेम इसका सिंपल, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 53, दिस एंगल इज़ 37, दिस एंगल इज़ इसके पीछे वाले के साथ भी 37. नाउ विल फाइंड आउट. हमारे को एंगल मिल गया, एरिया मुझे पता है, सिंपल चारों का एरिया सेम होगा. यहाँ पे एंट्री ले रहा है. सो S1 सरफेस पे देखते हैं. S1 सरफेस पे माइनस ये 37 डिग्री बिकॉज एंट्री ले रहा है. सो एंगल विल बी माइनस. ठीक है. सो दिस विल बी cos 53 माइनस S2 देखते हैं. S1 S2 इज़ नो, दिस विल बी S4, सॉरी दिस विल बी S4 नॉट S3, दिस विल बी S4. सो S4 का जो होगा मेरा, दिस में भी एंट्री ले रहा होगा, ये वाला मेरा S4 है एंगल, इसमें भी एंट्री यहाँ पे मार रहा होगा एंड द एंगल इज़ 37 डिग्री. We've already seen it. Angle is 37 degree here. So this is minus because it is entering, minus ये cos 37 degree. अब इसमें S3
दिस इज़ माई S3, यहाँ से एग्ज़िट मार रहा है और यहाँ से एग्ज़िट मार रहा होगा. सो दिस S5 और S3 से एग्ज़िट है. ठीक है, यहाँ पे दोनों पे फ्लक्स मेरा पॉजिटिव होगा. ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल इज़ 53 डिग्री एंड यहाँ पे एंगल इज़ 37 डिग्री. ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं सबको ऐड कर दूँ, सो इट कम्स आउट टू बी कैंसिल, इट विल कैंसिल, दिस विल कैंसिल दिस एंड दिस विल कैंसिल दिस. सो ओवरऑल फ्लक्स कम्स आउट टू बी 0. ओके, you have to visualize in seeing के एंगल क्या है ना. so that is the only crux in this problem, right? next question देखते हैं. just 5 second break. so let's see दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या है ना, पहले मेरे को सिलेंडर की ओरिएंटेशन दे रखी है, द एक्सिस इज परपेंडिकुलर लाइक दिस. फिर मेरा एक्सिस जो है इट विल बी टिल्टेड विद वर्टिकल विद सम एंगल थीटा. ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर ले लो, आप कोन भी ले सकते हो. ठीक है, कंसिडर एनी सिनारियो, कोन भी हो सकता है. सब में हम सेम ही चीज़ यूज़ करेंगे इन ऑल. और ज्योमेट्री आप कोई भी ले सकते हो. और यू कैन टेक दिस क्यूब ऑल्सो, यू कैन टेक द क्यूब ऑल्सो, क्यूब भी ले सकते हो. सो क्यूब में भी आप यू कैन वट यू कैन डू इन द क्यूब, यू कैन टिल्ट द क्यूब. ठीक है, इसको क्यूब को भी यहाँ पे तो आपने ऐसे रखा है, इसका एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, देन इन अनदर केस यू कैन टिल्ट द क्यूब. ठीक है, यू कैन टिल्ट द क्यूब लाइक दिस. ठीक है, इस केस में भी इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ लाइक दिस, सो यू कैन ईजिली सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो कि हम सिलेंडर वाले में यूज़ कर रहे हैं. सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड. ओके, सिलेंडर देखते हैं. तो सिलेंडर में ये वाला जो मेरा एरिया होगा, ये हाफ सिलेंडर, ये वाला ऐसे. ठीक है, ये वाला एरिया. सो दिस एरिया इट इज़ नथिंग बट, ये वाला आगे ये पीछे भी होगा. सो दिस एरिया का जो भी प्रोजेक्शन होगा इट इज़ नथिंग बट दिस ओनली. ठीक है, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर शीट ही तो होगा इसका. इस पे जो भी मेरी फील्ड इस पे लेटरल सरफेस पे गिर रही है इधर वाली साइड के, दैट इज़ इक्वल टू कि ये जो इस एरिया पे परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड कर रही है. ठीक है, दोनों सेम ही होगा ना. अगर मैं फॉर इंस्टेंस आप ऐसे देखो, यहाँ से टॉर्च चलाओ, इफ़ यू जस्ट पुट ऑन अ टॉर्च हेयर, इसका जो भी टॉर्च का जो भी शेडो बनेगा दैट विल बी दिस ओनली. ठीक है, जो भी प्रोजेक्शन आएगा इसका, इस वाले सरफेस का, इस लेटरल सरफेस का, दैट विल बी दिस प्रोजेक्शन ओनली. ठीक है, सो यहाँ पे विल टेक द एरिया दिस विल बी माई एरिया. ठीक है, जहाँ से एंट्री कर रहा होगा इट विल बी दिस. एग्जिट ऑल्सो इट विल बी डूइंग द सेम वे. ठीक है, एग्जिट भी इसका सेम ही होगा. ठीक है, एक में साइड में बस हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एक में साइड में पॉजिटिव होगा. वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि क्या फ्लक्स आ रहा है मेरा, क्या फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, क्या फ्लक्स आ रहा है, दैट इज़. सो उसके लिए क्या था मेरा जो मेन था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही हैं और इसके परपेंडिकुलर जो आएगा द एरिया विल बी दिस वन. ठीक है, द एरिया विल बी दिस वन, ए परपेंडिकुलर. सो ए परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये मेरा आर रेडियस था तो ये 2r हो गया, और ये मेरी हाइट है h. सो टोटल हो गया मेरा दिस रेक्टेंगुलर एरिया इज़ माई 2r इंटू h. दिस विल बी माई into E. so this will give me my electric flux in this case. अगर यहीं पे मेरा कोन होता कोई, तो कोन के अंदर आपका ये ट्राइंगल वाला एरिया आ जाता. दिस विल बी द ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो बन रहा होगा इसका. ठीक है, दिस ट्राइंगल जो भी बन रहा होगा, तो ये हाइट हो गया, ये इसका बेस हो गया. ठीक है, 1/2 इंटू हाइट हो गई इंटू 2r. दैट विल बी योर प्रोजेक्टेड एरिया. जो आपका लिटल सरफेस से जो भी आ रहा होता, ये दैट विल बी प्रोजेक्टेड एरिया. ठीक है, अब ये क्या, इस केस में क्या कर रहा है मेरा, वर्टिकली मैंने टिल्ट कर दिया सिलेंडर को. ठीक है, जो भी ज्योमेट्री होगी आप कोन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, आई एम जस्ट डूइंग इट इन द सिलेंडर. तो यहाँ पे क्या हुआ, वी हैव टिल्टेड दिस कोन एट अ एंगल ऑफ थीटा. ओके, नाउ द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास ऑन कर रही है. नाउ वी हैव टू सी कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोजेक्ट कर रही होंगी, एक तो इस पर प्रोजेक्ट कर रही होंगी. ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कर रही होंगी. अब मेरे को क्या करना है, इसका ये वाला जो एरिया है इसका परपेंडिकुलर एरिया जो होगा दैट विल बी गिविंग माई फ्लक्स. ठीक है, इसका परपेंडिकुलर एरिया अगर मैं इस वाले पोर्शन का परपेंडिकुलर लूँ, इस वाले एरिया का, इसका मैं प्रोजेक्टेड ये परपेंडिकुलर ले लूँ. ठीक है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू माई इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट विल गिव मी माई फ्लक्स. ठीक है, फॉर दिस एरिया. दूसरा यहाँ से एंट्री कर रहा होगा ये वाली इसको फेस कर रहा होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, सो सेम वे जो ये वाला जो मेरा एरिया है, इसको ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा इसका, ये वाला प्रोजेक्शन जो होगा इसका,
सो इसके परपेंडिकुलर माई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, सो दैट विल गिव मी माई फ्लक्स, ठीक है, दैट विल बी माई फ्लक्स। सो दो फ्लक्स आएंगे, एक तो इसके थ्रू आएगा, इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, सेम जो आएगा मेरा इसके थ्रू जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी इसको मैं प्रोजेक्ट करूँगा इस डायरेक्शन में। सो तो मेरा दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर हो जाएंगे एरिया, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। सो ये वाला मेरा कितना था, इस वाले लेटरल, ये तो मेरा लेटरल सरफेस हो गया ना, तो लेटरल सरफेस का मतलब ये पूरा का पूरा तो फॉल तो ऐसे करेगा इसी रेक्टेंगुलर पे, ठीक है, इस वाली लाइन के थ्रू इसी रेक्टेंगुलर पे फॉल करेगा दिस वन। ये है तो ये पूरा लेटरल एरिया, बट इफेक्टिव एरिया इसका भी ये रेक्टेंगुलर ही तो होगा, दिस रेक्टेंगल जो हमने इस वाले केस में देखा था, दिस रेक्टेंगल इस लेटरल का, ठीक है। तो इसका कितना एरिया हो जाएगा इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, एच, ये एच हो गया, ये 2r हो गया, ठीक है। इसका भी फर्दर प्रोजेक्ट करना है हमको इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये एंगल मेरा यहाँ पे थीटा है, और इसको मैं जब इस वाले को जब मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूँगा दैट विल बी ऑल्सो थीटा। सो दिस एंगल विल बी, ये एरिया कितना था मेरा 2h इंटू h इंटू 2r, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर दिया जिस पे कॉस थीटा। सो नाउ दिस विल बी माई एरिया परपेंडिकुलर, दिस विल बी माई एरिया परपेंडिकुलर इनटू मैं इसको ई से कर दूंगा, दैट विल गिव मी माई एरिया परपेंडिकुलर कि जो इसके थ्रू फ्लक्स पास ऑन कर रही होगी इस वाले पोर्शन के थ्रू। अब मेरे को इस वाले पोर्शन के थ्रू फ्लक्स, ये वाली फ्लक्स निकालनी है। तो ये वाला मेरा एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, सिंपल पाई आर स्क्वायर। इसको मैंने ये प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में, इसको मेरे को ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। सो इफ़ आई टेक, so this angle is my theta, this angle is my theta, so this angle is my 90 minus theta। तो ये ऐसे आएगा, देखो so this angle is given theta to you, this angle कितना हो गया 9, this angle is also theta, ये सेम लाइन है, this angle is also theta, ये वाला theta ये 90 है, this angle will come 90 minus theta, ठीक है। so ये वाले एरिया का I have to project it in this manner, ठीक है। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा एरिया परपेंडिकुलर। सो ये वाला एरिया परपेंडिकुलर आ गया मेरा पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला का एरिया परपेंडिकुलर मेरा आ जाएगा 2RH कॉस थीटा, और इंटू ई दोनों से मल्टीप्लाई किया मेरा 5 1 आ गया 5 2। सो एंट्री मेरी फ्लक्स कितनी एंटर कर रही है, ई आर इंटू 2H कॉस थीटा प्लस पाई आर साइन थीटा। सो दैट इज़ माई फ्लक्स एंटरिंग इनटू इट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है मेरे को, एक दिस इज़ माई लाइन चार्ज दे रखा है जिसका मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, प्लस आई हैव टू फाइंड आउट बिकॉज ऑफ दिस इन्फिनेटली लॉन्ग वायर मेरा व्हाट विल बी माई फ्लक्स थ्रू दिस सर्कल, इस सर्कल के थ्रू व्हाट विल बी माई फ्लक्स। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो वायर होगा इसकी वजह से हर एक पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस एंड दिस, फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस एंड दिस, हर किसी की इसमें सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी वेरिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा यहाँ पे। सो वी कैन नॉट फाइंड आउट विद अ डायरेक्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, सो वी हैव टू सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया, छोटा सा एरिया लेके विल सेलेक्ट एलिमेंटल एरिया लेके, सो उस पर फिर देन विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड देन वी कैन इंटीग्रेट इट। सो इस सर्कल पे निकालने के लिए व्हाट विल डू कि हर एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सो बेस्ट इज टू टेक इट इन द रिंग, बेस्ट इज टू टेक द रिंग ऑन टू दिस, एलिमेंटल रिंग ले लिया। अब बिकॉज ऑफ दिस इस एलिमेंटल रिंग पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जो मेरा इस डायरेक्शन वाला होगा, ई परपेंडिकुलर वाला, वो तो ग्रेज थ्रू कर रहा है इस सरफेस से, ठीक है। इन दोनों के बीच में तो एंगल मेरा जो थीटा जो होगा वो मेरा 90 डिग्री हो गया, बिकॉज ये वाला जो होगा
इस पे जितने भी परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट आएंगे मेरे, जितने भी मैं रिंग्स लूँगा उनके सबके परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी ग्रेजिंग थ्रू दिस सरफेस। ये इसका एन मेरा इस डायरेक्शन में है सपोज, तो ये मेरा ई इस डायरेक्शन में है, सो दोनों के बीच में एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, सो दिस विल ऑलवेज ग्रेज थ्रू, सो दिस द फ्लक्स थ्रू दिस ई परपेंडिकुलर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, सारे जो भी मेरे फॉर ऑल द रिंग्स। अब जो मेरा फ्लक्स होगा थ्रू द ई पैरेलल होगा, एंड दैट ई पैरेलल और ई पैरेलल एंड दिस नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल इज पाई, सो दैट इज that will give me नेगेटिव वैल्यू आएगी बिकॉज एंटरिंग कर रहा है, बट इट विल बी पैरेलल टू माई एरिया वेक्टर। ठीक है, इट विल बी पैरेलल टू माई एरिया वेक्टर, सो दिस विल बी माई ए परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट वी विल डू, ये वाला एरिया ये निकालते हैं बस हम ई पैरेलल। ठीक है, सो फाई कितना होगा फॉर दिस रिंग, ये वाला तो ज़ीरो हो जाएगा, इसका फाई फॉर दिस रिंग ई परपेंडिकुलर वाला ज़ीरो हो जाएगा। इसका कितना होगा फाई मेरा, ये इसका फाई कितना होगा ई पैरेलल इनटू ये स्मॉल एरिया जितना रिंग का एरिया होगा। रिंग का कितना एरिया है मेरा 2 पाई वाई इंटू डी वाई, दैट इज़ माई एरिया ऑफ रिंग, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ माई दिस लेमडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ठीक है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल, डी वाई इज देयर, सो 2 वाई से 2 यहाँ पे, तो फाइनल वैल्यू मेरी आ गई। इसको इंटीग्रेट विल डू इट फ्रॉम 0 टू आर, वाई को 0 से आर इंटीग्रेट करेंगे, माई फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सर्कल कम्स आउट टू बी लेमडा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेमडा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट। ओके, सो these are the so this is the concept of flux. Basically it will just show you how much is the like number of electric lines crossing the perpendicular crossing the area perpendicular to the electric field line. So that is the concept of the flux which we are going to use it in our Gauss law also. ठीक है, so we have seen some questions also later on also जब हम Gauss law लेंगे there also we are going to see some further examples. अभी के लिए we'll just move on to our next topic which is flux due to a point charge. ठीक है, फ्लक्स एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, विल फाइंड आउट द फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. ओके, सो सपोज दिस पॉइंट चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फेयर. ठीक है, ऑफ द रेडियस आर. अगर ये मेरा रेडियस आर है, सो इसके थ्रू व्हाट विल बी माय फ्लक्स पासिंग थ्रू. सो आई हैव टेकन द लोअर पार्ट ऑफ द सरफेस. अपर पार्ट ऑफ द सरफेस पे भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बिकॉज इट इज़ अ 3D वन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी देयर. सो वी जस्ट फॉर द कंसिडरेशन वी हैव जस्ट टेकन द लोअर पार्ट ऑफ द सरफेस जस्ट टू शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. ठीक है, सो बट होंगी इसकी ऊपर नीचे चारों तरफ. ठीक है, फॉर दिस प्लस क्यू चार्ज. सो इसकी प्लस क्यू चार्ज की वी हैव टू फाइंड आउट द फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज अक्रॉस दिस सरफेस. ठीक है, अक्रॉस दिस सरफेस और द स्फेयर एट अ रेडियस आर. सो यहाँ पे क्या होगा, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सबकी डिफरेंट होगी एट ईच एंड एवरी पॉइंट. कि यहाँ पे एरिया सपोज मैं आई कैन नॉट टेक द होल एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो रही है ना, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है. इस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन है. सो फॉर एवरी एरिया माई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज चेंजिंग. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट्स वी हैव टू टेक अ स्मॉल एरिया ds. स्मॉल एरिया मैंने लिया ds. यहाँ पे क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इट इज़ कमिंग परपेंडिकुलर और दैट इज़ अलॉन्ग द एरिया वेक्टर डायरेक्शन. ठीक है, एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन मेरी यही है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है फॉर दिस स्मॉल एरिया, फॉर दिस स्मॉल ds. ठीक है, सो एक ये वाला इशू, ये इट इज़ काइंड ऑफ अ सिमेट्री. सो दिस इशू इज सॉल्व कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ विद दिस एरिया के साथ जो मेरा जो एंगल है दैट इज़ cos theta is equal to 0. So value is coming out to be 1. So is for this small area what will be my small electric flux. Small electric flux is by d phi is equal to E dot ये small area ds cos theta. Cos theta is 0 and electric field at this point. बट सरफेस पे एक और फ़ायदा है मेरा, यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. ठीक है, स्फेयर अगर मैंने ले लिया यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी सेम. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऑन दिस स्फेयर. तो इस पॉइंट पे एवरीवेयर माई इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम. सो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डाल दिया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू
ds जो ये मेरा ds है इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। वी हैव डन द इंटीग्रेशन, दिस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन, इसका कंप्लीट सरफेस इंटीग्रल लिया मैंने। सरफेस इंटीग्रल इसका कितना हो जाएगा 4πr², ठीक है। सो 4π ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 4πr², इन दोनों के बीच एंगल इज़ 1। यहाँ से मेरा 4πr² कैंसिल हो गया। फाइनल वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द shape of any surface because it is not having any radius into it, ठीक है। it is not having any radius और कुछ there is no configuration of the sphere के कोई measurement value नहीं है, कोई radius नहीं है sphere का यहाँ पे, ठीक है। you can take any value of the radius यहाँ पे। if you take the bigger radius also, so from there also the electric flux comes out to be equal to q divided by epsilon naught, ठीक है। so that is our fundamental entry into the Gauss law. This is our, it's going to be the entry into our Gauss law. इसके बाद we are going to study Gauss law. So this is what on which this concept only we are going to build up the Gauss law. So यहाँ पे हमने देखा फ्लक्स कितना आया q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट which is independent of the shape of the surface, ठीक है। यहाँ पे it's not depending कि what will be my at each and every point if each and every अगर मैं यहाँ पे भी इसके थ्रू भी देखूँ, my electric flux comes out to be equal to q by epsilon naught only. It is only depending upon the q and the value of my permittivity. It is not depending on the shape of the surface, ठीक है। So we'll see here also how it is not depending on the shape of surface. Suppose this is my electric charge here q and if I am having this surface, ठीक है, if I am having this surface, तो इस surface पे भी इस surface के through भी my electric flux comes out to be equal to q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जो मेरा ये चार्ज q है इस सरफेस के थ्रू भी। सो लेट अस सी दैट अगर ये मेरा q है, सो विल टेक दिस, एक सरफेस ले लिया हमने, वी हैव टेकन दिस सरफेस, इस सरफेस पे विल टेक फ्रॉम दिस पॉइंट इफ़ वी कुड एबल टू प्रूव कि ये वाला इसके थ्रू जो मेरा फ्लक्स, इफ़ वी टेक दिस, एक मैंने अंदर एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक है। इस पे इफ़ वी कुड एबल टू प्रूव कि ये वाला जो मेरा सरफेस है दिस स्मॉल ds, इसके थ्रू जो मेरा फ्लक्स पास ऑन हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू ये जो मेरा ds है, इस पे जो मेरा फ्लक्स पास ऑन हो रहा है। इफ़ दे बोथ विल कम देन आई कैन से दिस वाला एरिया के पास, इस वाले एरिया से भी मेरा जो फ्लक्स होगा दैट विल ऑल्सो बी सेम, और इधर के थ्रू भी अगर जो मेरा फ्लक्स पास ऑन हो रहा होगा इस वाले के थ्रू दैट विल ऑल्सो बी सेम, ठीक है। वी कैन प्रूव दैट कि अगर मेरा ये वाला जो फ्लक्स हो रहा होगा इस वाले के थ्रू दैट फ्लक्स इज इक्वल टू कि यहाँ से जितना भी फ्लक्स हो रहा होगा, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इट हेयर, कि यहाँ से जितना फ्लक्स जा रहा है वो यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, एंड देन विल एक्सटेंड इट कि जितना मेरा यहाँ से फ्लक्स जा रहा होगा उतना ही मेरा ये, इसको मैं और एक्सटेंड कर दूंगा, इट विल गो सेम फ्लक्स मेरा यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो यहाँ पे फ्लक्स कितना जा रहा होगा, सपोज दिस इज माई स्मॉल एरिया डी ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से फ्लक्स कितना जा रहा होगा, दिस इज माई ई इंटू दिस एरिया, ठीक है। दिस ई इंटू दिस एरिया इज़ माई फ्लक्स गोइंग हेयर। नाउ ये वाला मेरा सरफेस है, सो दिस इज़ माई सरफेस इज डी ए डैश ले लो इसको, ठीक है। अब मैंने डी ए डैश ले लिया, दिस इज़ माई डी ए सरफेस, इसके थ्रू मेरा कितना आ गया ई इंटू डी ए, ये जो मेरा फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स आएगा यहाँ पे, सो इस पॉइंट पे जो फ्लक्स होगा इसका मेरा जो डी एस है सपोज, ठीक है, इसका ये मेरा एंगल ये है और डी एस ये है। सो नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, सो वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो भी डिफर फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज दिस इज़ एट ए डिस्टेंस आर, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ एट ए डिस्टेंस एन आर ले लो, ठीक है, दिस इज़ एट ए डिस्टेंस एन आर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दिस वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज दिस इज़ माई ई डैश, दिस इज़ माई ई, जो मेरा ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ नथिंग बट ई का डिवाइड बाय एन स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मेरा रेडियस यहाँ पे एन आर है, सो इट विल बी रिड्यूस बाय एन स्क्वायर आर स्क्वायर, राइट। यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिड्यूसिंग, हमने देखा था ना इन्वर्स स्क्वायर लॉ से, द इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी रिड्यूसिंग बाय एन स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर ये मेरा रेडियस दिस इज़ माई एन आर है। नाउ ये जो मेरा सरफेस एरिया है दिस इज़ माई डी ए डैश, अब इसका जो प्रोजेक्शन आएगा इस डायरेक्शन में दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो भी मेरा मैग्नीट्यूड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट विल बी परपेंडिकुलर, तो ये वाला जो एरिया होगा दिस एरिया ई इंटू दिस डी एस का परपेंडिकुलर, ठीक है, ये वाले जो एरिया का परपेंडिकुलर दैट विल गिव मी द फ्लक्स,
सो नाउ दिस एरिया जो है मेरा ds, इसका परपेंडिकुलर विल बी, अगर मेरा यहाँ पे आप देखोगे इसका दिस यहाँ पे जो फ्लक्स जा रही होगी दैट विल बी, इसका जो परपेंडिकुलर होगा दैट यहाँ से जो भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पास ऑन हो रही होगी, सो इट विल बी सेम एज इसके थ्रू जो पास ऑन हो रही होगी, जो इस एरिया के थ्रू पास ऑन हो रही होगी. अगेन वी हैव सीन दिस केस ना, जब हमने स्फेयर वाला केस देखा था, सॉरी जब हमने हेमिस्फेयर वाला केस देखा था, तो यहाँ पे अगर मेरा ये ds पोर्शन है, दिस इज माई ds, इस जो इसके थ्रू मेरी फ्लक्स, इसके थ्रू जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये परपेंडिकुलर इसके एरिया के थ्रू पास ऑन हो रही होगी. सो दिस वी हैव टेकन इट इन द प्रीवियस एग्जांपल. सेम वे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस ds के थ्रू पास हो रही होगी, द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी इसके परपेंडिकुलर एरिया के थ्रू पास ऑन हो रही होगी, दिस वाले, ये वाले जो एरिया बन रहा होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, इस वाले एरिया के थ्रू, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है वर्टिकुलर प्रोजेक्शन दैट इज़ दिस ओनली, ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन दैट इज़ दिस ओनली. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके थ्रू ई इंटू दिस एरिया ए डैश एरिया, सो ई डी ए डैश, सो दिस विल बी फ्लक्स एट बी पॉइंट, ठीक है, फ्लक्स एट बी पॉइंट विल बी ई डैश इंटू डी ए डैश. ई डैश क्या हो गया मेरा, ई डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे था मेरा एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है. अब ए क्या है मेरा यहाँ पे, वी हैव सीन कि दिस इज सिंपल ज्योमेट्री. अगर ये मेरा एंगल फाई है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल के जो रेशियो होता है, इफ़ दिस इज़ आर दिस इज़ एन आर, तो इसका जो एरिया होगा A1 इज़ पाई आर स्क्वायर, और जो इसका एरिया होगा पाई इंटू एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला जो एरिया होगा, ठीक है. इट्स मेकिंग अ सेम सॉलिड एंगल. सो इसका जो एंगल, इसका जो एरिया निकल के आएगा मेरा, कितना आएगा मेरा, पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है. नाउ मेरा फ्लक्स कितना हो गया एट पॉइंट बी, ई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब एरिया ले लो आप एन स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह, ये एरिया ले लो. एरिया जो यहाँ पे जो एरिया होगा दैट इज़, इफ़ सपोज दिस एरिया इज़ दिस पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा इट इज़ एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू A1, ठीक है. यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, जो भी इसका ये जो रेडियस होगा इंटू A1 हो जाएगा यहाँ पे. सॉरी, यू कैन टेक एन स्क्वायर इंटू A1. एक बार और देख लेते हैं. इफ़ दिस इज़ माई ओमेगा, इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ r and this distance is nr, इसका जो एरिया आएगा that area we have seen, this area is, if this area is this and it is at a distance r, this area comes out to be equal to n square into a. this area is n square into a, ठीक है. अगर मैं और दूर चला जाऊँ एंड सम इसका जितना भी एरिया आएगा, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले में, हमने ऑलरेडी देखा था. ये यहाँ पे हो जाएगा इसका, अगर ये मेरा यहाँ पे n1r हो गया, n1r, सो वी कैन राइट इट डाउन एरिया एज n1 स्क्वायर इंटू a, ठीक है. वो स्क्वायर होता जाता है एरिया का, ठीक है. जितना जितना ये मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना उतना स्क्वायर होता जाता है. सो अब मैं इसमें देखूँ मेरा फाई जो b आएगा, फाई b पे ई डैश क्या होगा, ई मेरा कम हो जाएगा. वो कैसे कम होगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू से, एन स्क्वायर से कम हो जाएगा, आर स्क्वायर नहीं. सो विल टेक द वैल्यू एज ई डिवाइड बाई एन स्क्वायर ओनली इंटू एरिया. एरिया क्या होगा, एरिया मेरा बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा कितना, इंटू एन स्क्वायर से, ठीक है. एरिया मेरा बढ़ जाएगा एन स्क्वायर से, तो दिस एन स्क्वायर विल गेट कैंसिल. फाई की जो बी की वैल्यू आएगी, फाई बी विल ऑल्सो बी एट ई इंटू डी ए, ले लो ये इंटू डी ए, ठीक है. और फाई ए पे भी मेरा ये जो आ रहा था, इट इज़ नथिंग बट फाई ए इज़ ऑल्सो ई इंटू डी ए, फाई ए पे भी ई इंटू डी ए. एंड हेयर ऑल्सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो गया. वो कम का रेशियो क्या है, इन्वर्स स्क्वायर्स का रेशियो है. तो यहाँ पे जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट रिड्यूस बाय स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर, इन्वर्स स्क्वायर के थ्रू. और यहाँ पे क्या है, ये एरिया उतना स्क्वायर ऑफ दैट एरिया विल बी इंक्रीज. तो ये जितना मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है ना जिस रेशियो से, इन्वर्स स्क्वायर से, उतना मेरा एरिया बढ़ता जा रहा है. तो फाइनली यहाँ पे जो मेरा फ्लक्स है, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू दिस फ्लक्स ओनली, ठीक है. इस स्मॉल एरिया के थ्रू जितना भी फ्लक्स जा रहा होगा, इस बड़े एरिया के थ्रू भी उतना फ्लक्स जा रहा होगा. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर इन्वर्स स्क्वायर लॉ, जब हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाले लेक्चर में देख रहे थे. देयर ओनली वी हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट.
ठीक है. सो दैट्स हाउ यू विल सी के सेम वे यू कैन एक्सटेंड दिस थिंग कि यहाँ पे जितना एरिया, यहाँ से जितना मेरा इस वाले पोर्शन से अगर मैं एरिया ले लूँ, सो इससे मेरा जितना फ्लक्स पास ऑन हो रहा होगा, इससे भी मेरा उतना फ्लक्स पास ऑन हो रहा होगा, एंड दिस इज़ नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ दिस एरिया. ठीक है. सेम वे अगर मैं ये वाला पोर्शन देखूँ, ये मेरा अगर स्मॉल एरिया से पास ऑन हो रहा होगा, तो इस वाले एरिया का प्रोजेक्शन कितना होगा, दिस वन. ठीक है. ये जो मेरा ds है, इसका अगर मैं प्रोजेक्शन देखूँ, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ दिस. सो यहाँ से जितना फ्लक्स जा रहा होगा उतना ही मेरा यहाँ से फ्लक्स जा रहा होगा. सो और मेरा इस सरफेस के थ्रू हमने देखा था फ्लक्स कितना जा रहा है मेरा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो ये कोई भी सरफेस हो, एनी सरफेस यू विल टेक, और ये चार्ज मैंने अंदर रखा हुआ है, द फ्लक्स इज सेम फॉर एनी सरफेस. ठीक है. मैंने यहाँ पे जैसे स्फेयर लिया था सर, अगेन Q बाय एप्सिलॉन नॉट. इफ़ आई टेक अ क्यूब हेयर और कोन हेयर, अगर मैं कोन भी ले लूँ, सो इसके भी जो मेरा फ्लक्स पास ऑन होगा, दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट ओनली. Any surface or any regular surface if you take, there also it will comes out to be Q by epsilon naught. Here we have seen it with the proof ke how for any irregular surface also my flux is same, which is Q by epsilon naught. Okay, we'll see this questions. ये question देख लेते हैं और उसके बाद Gauss law will start in the next lecture ना. Already we are 1 hour 8 minutes. Not 1 hour 8 minutes, we are already more than 1 hour. So इसके बाद का जो होगा हमारा, we'll see it in the next lecture. ठीक है. Gauss law will see it in the next lecture. यहाँ पे मेरे को बोल रहा है in which position of ABCD आप सेकेंड चार्ज रखें कि आपका फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द हेमिस्फेयर रिमेन्स अनचेंज. ठीक है. ये जो हेमिस्फेयर है, इसके थ्रू फ्लक्स शुड बी अनचेंज. आप किस पॉइंट पे अपना चार्ज रखें, A, B, C एंड D. ठीक है. सो ये मेरा ऑलरेडी चार्ज है, सो इसके थ्रू तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपना निकल ही रहा होगा, जा रहा होगा. ठीक है. अब मैं किस पॉइंट पे और चार्ज रखूँ कि मेरा ये जो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मेरा जा रहा होगा, दैट इज़ व्हाट, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब वी हैव टू फाइंड आउट के डोंट वरी अबाउट दिस कि Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, विट विल कम फ्रॉम द गॉस लॉ. बट जस्ट ये सोच के चलो कि आपका Q है, इसके थ्रू जो पास ऑन हो रहा होगा. ठीक है. अब इसमें से कोई और मेरा कहीं पे भी मैंने चार्ज रख दिया, सपोज Q मैंने यहाँ पे चार्ज रखा और Q मैंने यहाँ पे चार्ज रखा, तो इनके थ्रू हाउ मच विल बी द, इनके थ्रू जो मेरा फ्लक्स है, हाउ इट विल बी चेंजिंग. अगर मेरा सपोज पॉइंट है मेरा D पे रखा हुआ है मेरा. ठीक है. सो D पे अगर मेरा चार्ज रखा हुआ है, सो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होंगी, यहाँ पे एंटर कर रही होंगी, यहाँ से एग्जिट कर रही होंगी. सो नेट फ्लक्स कितना हो रहा होगा, 0. ठीक है. नेट फ्लक्स हो रहा होगा 0. सो A वाले पे, D पे तो चार्ज रखोगे, सो मेरा फ्लक्स चेंज नहीं आएगा. A पे देखते हैं, A पे मैंने चार्ज रखा, A के थ्रू भी सेम होगा. यहाँ से जो फ्लक्स जा रही होगी वो यहाँ से एग्जिट कर रही होगी. सो A पे भी अगर कोई मैं चार्ज रखूँ, तब भी मेरा फ्लक्स पे चेंज नहीं आएगा. नाउ सपोज अगर मैं B पे कोई चार्ज रखता हूँ, B पे मैंने चार्ज रखा, यहाँ से एंटर किया, बट एग्जिट नहीं किया इस वाले सरफेस से, दैट मीन्स माई फ्लक्स इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज. ठीक है. यहाँ पे जो Q की वजह से जो फ्लक्स था वो डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज नाउ ओनली नेगेटिव फ्लक्स इज एंटरिंग. ठीक है. नेगेटिव फ्लक्स इज एंटरिंग ओनली, नो फ्लक्स इज कमिंग आउट, ओनली द फ्लक्स इज गोइंग इन. सेम वे C के थ्रू भी अगर मैंने देखा, सो C के थ्रू भी द फ्लक्स इज गोइंग इन, बट इट विल नॉट गोइंग टू कम आउट. सो इट इज़ गोइंग टू चेंज द फ्लक्स ऑफ माई हेमिस्फेयर. ठीक है. सो अगर मैं C और B पे रखता हूँ कोई चार्ज, देन माई फ्लक्स विल बी चेंज. अदरवाइज A और D पे रखता हूँ, फ्लक्स विल रिमेन सेम. ठीक है. सो हेयर इट इज़ रिटन, इफ इट्स एट B and C, phi in only, the net will be negative. If it's A and D, phi in phi out दोनों है, net will be 0. So no effect on my flux because of this charge if we are keeping the charge at A and D. ठीक है. अब ये क्वेश्चन देखते हैं. ये कह रहा है ए पॉइंट चार्ज Q इज़ लोकेटेड, Q जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस. ठीक है. ये फ्लैट सरफेस है, इससे जस्ट अबव रखा हुआ है, बहुत जरा सा ऊपर. ठीक है. So the flat surface the radius are, we have to find out the flux through the curved surface. ये curved surface के through flux बतानी है, through the flat surface, and repeat the part 1 and B if the charge is exactly at the center. Okay. So पहले में केस में देखा मेरा चार्ज जो है बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ऊपर दे रखा है. दूसरे केस में मेरे को चार्ज मेरा यहाँ पे है, तब मेरे को फ्लैट सरफेस के और ये कर्व्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना है. जब मेरा चार्ज थोड़ा सा ऊपर है, तो ऑब्वियसली इसके कर्व्ड सरफेस से एंटर कर रही होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इससे मेरी एग्जिट कर रही होगी इस वाले सरफेस से. ठीक है. दोनों से सेम होगी, बिकॉज ये वाला जो कर्व एरिया है, इसका
ठीक है, ये एंटर कर रही होगी यहाँ से और इससे एग्जिट कर रही होगी, और जितनी मेरी एंटर कर रही होगी मेरी इस वाले सरफेस से, उतनी ही मेरी सेम एग्जिट कर रही होगी, बिकॉज ये वाला जो मेरा एरिया है, दिस एरिया, इसका प्रोजेक्शन इज़ नथिंग बट अगर मैं इस सारे एरिया का प्रोजेक्शन करूँ, सो इट इज़ नथिंग बट दिस स्क्वायर ओनली, ठीक है, इस वाले कर्व्ड वाले एरिया का। सो इसका जितना भी मेरा इलेक्ट्रिक लाइन्स आएगा, दैट विल कम, फ्लक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, और इसका क्या आएगा, मेरा फ्लक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव। इसका फ्लक्स नेगेटिव आएगा फ्लैट सरफेस का, इसका पॉजिटिव आएगा कर्व्ड सरफेस का, तो द नेट विल बी ज़ीरो। सो यहाँ पे फ्लैट सरफेस का कितना हो गया मेरा, सपोज दिस इज़ माई क्यू, हमने यहाँ पे देखा था, अगर मेरा यहाँ पे है तो ओवरऑल मेरा पॉइंट चार्ज की वजह से जो आता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और हेमिस्फेयर पे कितना आ जाएगा मेरा, अगर हाफ उस पर देखें, और ये जस्ट जरा सा ऊपर रखा हुआ है, तो हाफ उस पर कितना आ जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर पूरे पे मेरा, अगर ये मेरा चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, सो पूरे के थ्रू मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, ठीक है, पूरे के थ्रू मेरा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जा रहा है। अगर मैं ऊपर वाला एरिया हटा दूँ, बस नीचे के थ्रू देखूँगा, तो मेरी फील्ड लाइन्स कितनी जा रही होगी, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ जा रही होगी ना, ऊपर वाले के थ्रू हाफ जा रही थी, नीचे वाले के थ्रू हाफ जा रही थी, तो अगर मैं नीचे वाला ही कंसिडर कर रहा हूँ तो हाफ क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंटरिंग इनटू दिस, ठीक है। नाउ वी हैव द कर्व्ड सरफेस से भी सेम मेरी एग्जिट कर रही होगी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सो पॉजिटिव नेगेटिव, दिस विल बी द केस 1। सेकंड केस क्या है, अगर मेरा चार्ज जस्ट मेरा फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया, अभी क्या था, मेरा चार्ज थोड़ा ऊपर था, तो फील्ड लाइंस का कुछ एंगल बन के ये सारे एंटर कर रहे थे। अभी क्या है, जस्ट मेरा यहाँ पे ये फील्ड फ्लैट सरफेस के ऊपर रख दिया, अब जो मेरी फील्ड लाइन है ये इसको ग्रेज कर रही होंगी बस फ्लैट सरफेस को, बट इसके अंदर जो है कर्व सरफेस के अंदर कुछ फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ठीक है, कर्व सरफेस के ऊपर फील्ड लाइंस जा रही होगी, बट इसके थ्रू ग्रेज कर रही होंगी मेरी यहाँ पे। तो नाउ मेरा फ्लैट सरफेस पे जो मेरा सेकंड केस में जब मैंने चार्ज जो है बिल्कुल जस्ट यहाँ पे रख दिया इसके फ्लैट सरफेस पे, इन दिस केस फ्लैट सरफेस के थ्रू मेरा फ्लक्स ग्रेज थ्रू कर रहा होगा, देन इन दैट केस इट विल कम्स आउट टू बी ज़ीरो, और सरफेस जो मेरा ये कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इस पे जो होगा मेरा दैट विल बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके थ्रू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मेरा आउट हो रहा होगा, सो दिस विल बी माई क्यू एप्सिलॉन नॉट आउट, ओके, राइट। So Gauss law, we'll see it in the next lecture. अभी we'll just take a quick review, हमने क्या क्या देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, Gauss law, this thing we'll do it in the next lecture. So हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ नथिंग बट अ फ्लो, ठीक है, फ्लो वेक्टर फील्ड का फ्लो, वेक्टर फील्ड हमने देखा, इट इज़ द फील्ड इन द स्पेस जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एंड मेनली हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव वे ऑफ शोइंग के उसको, मतलब हमें बस बता देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस के थ्रू ऐसे पास कर रही होंगी, इस वाले सरफेस के थ्रू ऐसे पास कर रही होंगी, बट कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी उसकी क्वांटिटेटिव नॉलेज नहीं दे पाता। तो फ्लक्स क्या करता है, फ्लक्स गिव्स द क्वांटिटेटिव नॉलेज ऑफ द फील्ड लाइंस, ठीक है। सो व्हाट इज फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स कम्स आउट टू बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस नॉर्मली थ्रू द एरिया, और जो नॉर्मल है दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो नॉर्मल एरिया है, ठीक है, उसके थ्रू कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हमने एरिया वेक्टर देखा ओपन एरिया और क्लोज एरिया में, व्हाट विल बी माय नॉर्मल, देन वी हैव सीन सिंपल, अगर मेरा परपेंडिकुलर एरिया है, सो दिस इज़ माय फ्लक्स, और बोथ द केसेस वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज यूनिफॉर्म, सो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सो इन दिस केस ऑल्सो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ई इज सेम, माई टोटल एरिया मैं ले लेता हूँ उसका एरिया, इसको मैंने प्रोजेक्ट कर लिया दिस डायरेक्शन में, बिकॉज वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर एरिया, सो इट्स कम्स आउट टू बी ई ए कॉस थीटा। अगर मेरा ई वेरी कर रहा है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ स्मॉल एरिया, ऑन दैट वी हैव टू take the small flux through this small area, that is E into ds, and then we have to integrate across the surface, to get the value of our flux from the entire surface. Here we have seen in the अगर मेरा कोई closed surface है, so if we are having the electric field lines, so it will be entering into the closed surface, exiting out of the closed surface, and we have seen how it is how my flux is negative, how my flux is positive. When it is entering it is negative, when it is exiting it is positive, when it is just grazing through it comes out to be equal to 0. Then we have seen certain examples of calculating flux,
इन डिफरेंट ओरिएंटेशन. सपोज दिस हेमिस्फेयर का देखा था, देन दिस हेमिस्फेयर को अगर इस ओरिएंटेशन में रखा है, देन वी हैव सीन दिस incline. Here we have seen the cylinder, here we have seen the cube, and here we have seen the cylinder, and the cylinder if it's tilted, so in that case what is my flux entering. Then we have seen the flux due to the point charge. It is we have got some interesting result here. This is what from here we are going to build up on the Gauss law. Okay, so here we have seen the result which is coming in, the flux through this point charge. If we see, if we have to find out on this surface निकालना था हमने, बट हमने at a distance r, अगर मेरा ये surface है, इस पे निकालना था मेरा flux कितना है. बट when we calculated the flux की value आई, it is independent of the r value. ठीक है, it is independent of the r value. It comes out to be equal to q into epsilon, q by epsilon naught. So बस चार्ज पे डिपेंडेंट है, अंदर कितना चार्ज रखा हुआ. इट इज़ नॉट डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा किस पॉइंट पे निकालना है मेरे को फ्लक्स क्लोज सरफेस के. ठीक है, इट इज़ नॉट बीन. So we have further seen कि अगर मैं इसको, if I take it this charge into any cone, or if I take this charge into any cylinder, हर किसी के through flux will comes out to be equal to same. For everything flux comes out to be equal to q by epsilon naught. Same way we have proven it. We have proved it कि if we are having some irregular surface, तो इस irregular surface के भी जो charge आ रहा, इस irregular surface के through भी जो मेरा flux आ रहा होगा, that will also be equal to q by epsilon naught only. That we have seen it here in this case. Okay, so फिर हमने we have seen some questions. So that's all for today. अब हम next lecture में we'll meet up and we'll see the Gauss law. Gauss law पढ़ेंगे, and majorly जो होगा हमारा we'll study the application of Gauss law, जो कि हम symmetric extended bodies में, like हमने अभी तक हमने वी हैवंट सीन द सिलेंडर और वी हैवंट सीन द स्फेयर के थ्रू, इस स्फेयर से अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इफ माई एक्सटेंडेड बॉडी स्फेयर, हमने लास्ट लेक्चर तक वी हैव ओनली सीन द लाइन एंड लीनियर लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम विल सी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है. तो उसकी वजह से विल अप्लाई द गॉस लॉ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट्स. ठीक है, so that is what we are going to do in the next coming lectures. Okay, so all right, I'll meet you up in the next lecture. So all right, thank you.